محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ قرآن کریم کے تفسیر اور اس کے فہم کے سلسلے میں ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کا فہم ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے سینے قرآن کریم کے لیے کھول دے، اور یہ قرآن ہمارے لیے اللہ رب العزت کی یہ حجت بن جائے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ آخری جو بات ہم نے ذکر کی تھی وہ 3 گروہ تھے جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ ایک متقین مومنین کا گروہ، اور دوسرا کفار کا، اور تیسرا منافقین کا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک حکم دیا ہے، اور خطاب رب العالمین کا اس طرح ہے، اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور آج آیت نمبر 21 سے ہم انشاءاللہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانیت کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کی عبادت تم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نہ صرف تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہماری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا وہی ہے۔ تو پھر تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی کس طرح عبادت کر سکتے ہو، اور دوسروں کو اللہ کا کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو یہ پہلا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم جامع، یہ ایک جامع نام ہے، لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق من الاقوال والافعال، قول سے ہو، فعل سے ہو، اور جو من قول و فعل، اور خواہ وہ ظاہری عمل ہو، باطنی عمل ہو، یہ تمام چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو عبادت صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، نماز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسے دعا کرنا، ذبح کرنا، نظر و نیاز دینا، اور ڈر، خوف، توکل، یہ سب چیزیں یہ عبادت میں داخل ہیں، اور عبادت سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش
बनाया, वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया, वअंज़ल मिनस समाई मा, और उसने आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, उसके जरिए तुम्हारे लिए रिज्क निकाला, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो तुम न ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, अंदाद ये निद्दुन की जमा है, यानी कोई भी शरीक अल्लाह के लिए न ठहराओ। वह अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, तो जानबूझकर तुम्हें पता है कि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, और वही मुनइम हकीकी है, उसी ने तुम्हें ये जिंदगी दी है, वही तुम्हें मारता है। तो जब ये सारी बातें, तो फिर दूसरों को अल्लाह का शरीक क्यों ठहराते हो? तो शिरक की तारीफ भी यही है कि दावत गैरिही माहू, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी और को पुकारना, इबादत में से कोई भी चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खास है, मखलूक में से किसी के लिए भी उसको मानना, ये शिरक कहलाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ जिक्र किया कि देखो अल्लाह ने ये नेमतें तुम पर की हैं, रिज्क वो तुम्हें देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेले की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। और आगे फरमाया, व इन कुन तुम फी रईबिन, और अगर तुम हो शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, उससे जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम ले आओ उस जैसी कोई एक सूरत, वदउ शुहदाअकुम, और तुम बुला लो अपने गवाहों को, मददगारों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये पीछे हमने बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चैलेंज दिया, और ये क्यामत तक के लिए चैलेंज है, उस वक्त भी था, आज भी है, और ता क्यामत भी है, कि अगर तुम शक में हो उससे जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही, तो तुम ले आओ उस जैसी कोई एक सूरत, वदउ, और सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि जो तुम्हारे मददगार हैं, जिनको तुम बुलाना चाहते हो, सब मिलके, अल्लाह के अलावा जितने भी हैं, तुम उस जैसी एक सूरत अब तुम जो है बनाकर ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। और अल्लाह का ये चैलेंज कितना बड़ा है, फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे, यानी ये नहीं कि अभी तक तुम नहीं कर सके, नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ताकत में ही नहीं है, तुम्हारी इस्तिताअत में ही नहीं है कि तुम कोई एक सूरत कुरान की बना कर लाओ, सारे मिल के बना लो, नहीं कर सकते। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वलन तफ़अलू, और तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार, तो उस आग से डर जाओ, अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा, के जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं, वो इद्दत लिल काफिरीन, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। तो इस आयत करीमा में भी काफी चीजें जिक्र हुई, जिनमें एक तो ये मालूम हुआ कि जो जहन्नम है वो मौजूद है, ये अकीदे का मसला है, अहलुस सुन्नह वल जमात का ये अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कर दिया है, वो मौजूद हैं। और यहाँ फरमाया कि उसका ईंधन पत्थर होंगे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा तर्जुमानुल कुरान है, उनकी तफसीर के मुताबिक इससे मुराद गंधक के पत्थर हैं। और बाज ने कहा कि पत्थरों से मुराद वो बुत हैं, वो भी जहन्नम में दाखिल होंगे जिनकी लोग दुनिया में इबादत करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया कि इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि बेशक तुम और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के अलावा, वो सब जहन्नम का ईंधन होंगे। तो इससे मुराद वो पत्थर होंगे, वो मूर्तियां होंगी जिनको अल्लाह का शरीक बनाया गया। और इससे ये भी मालूम हुआ कि ये जो जहन्नम है, दरअसल इसको काफिरों के लिए तैयार किया गया है। और जन्नत और जहन्नम ये कोई तमसीली चीजें नहीं है, जैसा कि बाज मुतजद्दिदीन और मुनकरीन हदीस कहते हैं कि खुसूसन जो ऐसे लोग जो नेचरी जिनको कहते हैं, वो कहते हैं कि जन्नत ऐसी नहीं होगी, वो रूहानी चीज होगी, वहाँ नेमतों का वो इनकार करते हैं। तो ये सारी चीजें बातिल हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस कुदसी,
کہ अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जो जिनको किसी नफ्स ने नहीं देखा और न किसी कान ने सुना है, वला खतर अला कल्ब बशर, और किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक नहीं है। तो जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं। वबश्शिर लदीन आमनु, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ बशारत दी, खुशखबरी दी। फरमाया खुशखबरी दीजिए उन लोगों को, आमनु जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात और जिन्होंने नेक अमल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, के बिलाशुबह उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरति रिज़्का, जब कभी उनको रिज़्क दिया जाएगा उससे रिज़्क, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो वो कहेंगे कि ये वही रिज़्क है जो हमें उससे पहले दिया गया था। व उतू बिही मुतशाबिहा, और मिलती जुलती चीज़ें उनके पास लाई जाएंगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो यहाँ अहले ईमान को अल्लाह ताला ने बशारत दी, किन लोगों को, जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। एक तो ये बात मालूम हुई कि जन्नत सिर्फ ये ऐसी चीज नहीं है कि इंसान उसकी आरजू करके बैठ जाए कि हमने तो जन्नत में जाना है, बल्कि उसके लिए ईमान लाना जरूरी है और दूसरा नेक अमल करना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने ये दो चीजें रखी हैं, ये शर्त है जन्नत में दाखिल होने के लिए। तो हम देखें कि ईमान में हम कहाँ हैं और नेक आमाल हम कितने करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़राइज़ किस कदर हम एहतमाम के साथ अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं चीज़ों को जन्नत में जाने का सबब बनाया है। और दूसरा मसला यहाँ ये मालूम हुआ कि उनके पास जो रिज़्क लाया जाएगा जन्नत में मिलता जुलता होगा। इसका एक माना मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि जो जन्नत की जो नेमतें होंगी, जो मेले मेवे होंगे, जो उसके फल होंगे, वो दुनियावी फलों से मिलते जुलते होंगे, यानी रंग में उन जैसे होंगे, लेकिन जायके में बहुत बड़ा फर्क होगा। बिल्कुल ये नहीं कि दुनिया में जो है वही होंगे, बल्कि दुनिया में तो ऐसी चीजें हैं जो सड़ जाती हैं, जो खराब हो जाती हैं, जिनका जो जायका होता है वो अच्छा नहीं होता, कड़वा होता है। तो जन्नत की नेमतें बड़ी पाकीज़ा होंगी और बड़ी बेहतरीन होंगी। ये सिर्फ नाम की हद तक यानी मुशाबहत है, हकीकत दोनों की बिल्कुल अलग होगी। तो यहाँ अमल जिसको कुरान ने अमल कहा, तो उसमें एक तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजामंदी की नीयत से वो अमल किया जाए। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं होगा तो वो भी नामकबूल है। और जो नमूद और नुमाइश के लिए और दुनिया वालों को खुश करने के लिए, दीगर अगराज व मकासद के लिए अमल किया जाएगा तो वो भी कबूल नहीं होगा। और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, यानी जो दुनिया में जो हैज, निफास और दीगर जो आलाइशें हैं उनसे वो जो है वो पाक होंगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे। तो अहले जन्नत हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और खुश रहेंगे, और अहले जहन्नम हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मुनादी, एक फरिश्ता ये ऐलान करेगा कि जहन्नमियों अब मौत नहीं है, ए जन्नतियों अब मौत नहीं है, जो फरीक जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो सही बुखारी की ये रिवायत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन अल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, भले वो मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की हो या उससे भी ऊपर की चीज हो। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, तो बाकी रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि बेशक ये हक है उनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मिसाल के जरिए क्या इरादा किया है। युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला गुमराह करता है उसके जरिए बहुत सारों को, वयहदी बिही कसीरा, और बहुत सारों को उसके जरिए हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, गुमराह तो सिर्फ अल्लाह ताला फासिकों को करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कतई दलाइल से कुरान का मुअज्जा होना साबित कर दिया
تو कुफार ने एक और तरीके से जो है वो कुरान करीम का मुआरजा किया, उस पर एतराज किया कि अगर ये अल्लाह का कलाम है तो फिर इसमें छोटी छोटी चीजों की मिसालें क्यों हैं। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फरमाया कि ये तोज़ी और किसी चीज को समझाने के लिए किसी हिकमत बालगा के तहत मिसाल बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और फौक के माने दो हो सकते हैं, या तो इससे माना मच्छर से भी बड़ी कोई चीज, यानी मच्छर या उससे बड़ी कोई चीज उसकी अल्लाह मिसाल दे, या मच्छर से जो यानी कम, यानी क्योंकि फौकहा से मुराद फिर मच्छर का पर होगा, और वो जाहिर है कि मच्छर के वजूद का एक हिस्सा है जो कि कम है। तो माना ये हुआ कि मच्छर से बड़ी कोई मिसाल दे, या जो मच्छर से कम तर यानी उसके एक पर की अल्लाह ताला मिसाल दे। तो ये दोनों मफहूम यहाँ जो है यानी मौजूद है। बाकी अल्लाह ताला ने ये चीज़ जिक्र की कि अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है, और ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के तहत है। और बाकी अल्लाह की सुन्नत है, नुवल्लिही मा तवल्ला, जो जहाँ फिरता है अल्लाह फरमाता है हम उसको उसी तरफ जाने देते हैं, फिरने देते हैं। और हर शख्स जिसको पैदा किया है जिस मकसद के लिए, तो वो उसके लिए वो अमल करना भी आसान है। तो यहाँ फिस्क से मुराद, वैसे तो गुनाह को भी फिस्क कहते हैं, लेकिन यहाँ जो फासिक कहा गया है तो इससे मुराद कुफार है, यानी जिस वो शख्स जिसमें काफरों वाली सिफात पाई जाए। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको पुख्ता करने के बाद, वयक्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, अल्लाह ताला ने जिस चीज को मिलाने का हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं। वयुफसिदून फिल अर्दि, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइक हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। तो यहाँ जो अहद है, मुफसरीन ने इस अहद से मुराद मुख्तलिफ माने किए हैं कि अल्लाह की वो वसीयत जो अल्लाह ने अल्लाह के अहकामात को बजा लाने और गुनाहों से रोकने के मुतल्लिक अंबिया के जरिए जो मखलूक से की, एक अहद तो ये। दूसरा ये माना किया गया है कि इससे मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने अहले किताब से लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद तुमने उनकी तस्दीक करनी है और उनकी नबूवत पर ईमान लाना है। और ये अहद जो है, जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में, जिसको अहद अलस्त कहते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो अल्लाह ताला ने ये अहद सबसे लिया था, और उसका जिक्र भी कुरान करीम की सूरत आराफ में मौजूद है। तो नक्ज़ अहद, अहद को तोड़ने का मतलब यह है कि उस अहद को पूरा न करना। और आगे फरमाया कई फतक फुरूना बिल्लाह, तुम कैसे कुफर करते हो अल्लाह के साथ। वकुन तुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें उठाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो मौत और दो जिंदगियां उसका तज़किरा किया है। पहले मौत से मुराद अदम है, यानी जब हम थे ही नहीं। और पहली जिंदगी माँ के पेट से निकल कर मौत से हम किनार होने तक की है, और फिर मौत आ जाएगी, फिर आखिरत की जिंदगी है, ये दूसरी जिंदगी होगी। और इसी तरह कब्र की जिंदगी बरज़खी जिंदगी है, उसको ना तो हम दुनिया की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं और ना आखिरत की जिंदगी में, बल्कि ये उन दोनों के बीच में है, क्योंकि बरज़ख का माना पर्दा है। और वैसे तो जब हम कहते हैं कि आखिरत के दिन पर ईमान लाना, तो मरने के बाद जितने मराहल हैं ये सब जो है आखिरत के मराहल शुमार होते हैं। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है वो सब पैदा किया। सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर वो मुस्तवी हुआ, बुलंद हुआ आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, उनको ठीक 7 आसमान बनाया। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान की तरफ बुलंद हुआ, जैसे सही बुखारी में है कि अल्लाह ताला के आसमान के ऊपर अर्श पर बुलंद होना, और खास खास मौके पर अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, ये अल्लाह की सिफात में से है। और अल्लाह ताला की सिफात के बारे में अहलुस सुन्नह वल जमात का जो मौक़िफ़ है, उसके लिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब अल अक़ीदतुल वासितिया बड़ी अहम किताब है। वो
जो है जितने तलबा हैं उन सबको ये पढ़नी चाहिए, बाज़ ने पढ़ी भी होगी। तो इसमें बड़ा बेहतरीन अंदाज है शेखुल इस्लाम का, और बड़े उन्होंने नुसूस के साथ, अक्ली नकली हर तरह के दलाइल के साथ अहलुस सुन्नह वल जमात का ये अकीदा बयान किया है। तो अल्लाह ताला की ये सिफ़ात हैं, उनका जो माना है वो हम करते हैं, लेकिन उसकी कैफियत अल्लाह के हवाले है। तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, जैसे उसके शाया निशान है, उसकी कैफियत को हम नहीं जानते। और इससे ये पता चला कि जो आसमान है वो भी सात हैं, और इसी तरह जमीन है वो भी सात हैं। जैसे वमिनल अर्द मिसलहुन्न, कुरान करीम की इस आयत से भी इस्तेदलाल है कि जमीनें भी उनकी मिसल है, आसमानों की मिसल है। यानी जिस तरह आसमान सात हैं तो जमीनों की तादाद भी सात है। अल्लाह के नबी की एक हदीस भी आपने फरमाया कि जिसने जुल्मन किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा किया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सात जमीनों का उसे तोक पहनाएगा। तो इससे पता चला कि जमीनें भी सात हैं जिस तरह आसमान सात हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, क्या तू बनाएगा उसमें वो जो इसमें फसाद करेगा, वयस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, और हम तेरी तस्बीह हम्द के साथ बयान करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यहाँ देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सामने जब ये जिक्र किया कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा का माना बाज तो नायब कहते हैं, अल्लाह का नायब। नायब इस माना में तो सही है कि ज़मीन में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात चूंकि नाफिज करता है और अल्लाह ताला के अवामिर की तनफीज करता है, इस माना में खलीफा है। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि खलीफा का जो माना है वो ये है कि एक दूसरे के पीछे आएंगे। यानी मिसाल के तौर पर जो हम देखें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आज तक या क़यामत तक कितने लोग एक दूसरे के पीछे आएंगे, तो वो सब जो है, इससे मुराद है, खलीफे से मुराद जो एक दूसरे के पीछे आएंगे, यानी एक दूसरे के जानशीन बनेंगे। तो ये माना भी अपनी जगह पर सही है। तो उन्होंने जब ये सुना अल्लाह ताला से, तो फरिश्तों ने ये कहा कि अल्लाह, क्या तू उसमें वो बनाएगा जो फसाद करेगा, खून बहाएगा। तो फरिश्तों का ये कहना किसी हसद की बिना पर नहीं था, बल्कि उनकी हिकमत जानने के लिए था कि या अल्लाह, उसकी हिकमत क्या हो सकती है। अगर हिकमत तेरी इबादत है, तेरी हम्द है, तस्बीह है, तकदीस है, तो उसके लिए तो हम मौजूद हैं। तो फिर आप उसको क्यों पैदा कर रहे हैं। तो उनका हिकमत जानने के लिए था, न कि कोई हसद था फरिश्तों को, क्योंकि फरिश्ते हसद नहीं करते। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो कभी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देता है वही वो बजा लाते हैं। तो ये उनका मामला था। अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये कितनी बड़ी बात है। फरिश्तों ने अप, अपनी गर्दन झुका ली, सर तस्लीम खम कर दिया। आज कितने नादान है वो लोग कि जिनका इल्म बड़ा महदूद है, जो कुछ जानते ही नहीं है, वो उठ के कलामुल्लाह पर इतराज करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर इतराज करते हैं। हालांकि उनको खुद अपनी कम इल्मी का इतराफ करना चाहिए कि इस तक हमारा जहन नहीं पहुंचता, नहीं है कि इंसान कलामुल्लाह और कलाम रसूल का इनकार करे। आगे फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो तमाम नाम है वो सिखलाए। तुम अरदहुम अलल मलाइका। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर उनको पेश किया। फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कहा, तुम मुझे खबर दो इन नामों की अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी जो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और फरिश्तों से कहा कि तुम इस चीज को बताओ कि वो क्या, किस चीज का इल्म है जो अल्लाह ने उसको दिया था। और जब फरिश्ते अपने कम इल्मी और इसी तरह अपने, उन्होंने जो कम आयगी का इतराफ किया, काल सुबहानक ला इल्म लना, कालू सुबहानक ला इल्म लना, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं है। इन्नका अंतल
अलीम उल हकीम, हाँ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखलाया, बेशक तू जानने वाला हिकमत वाला है। तो ये है एतराफ जो उन्होंने किया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, काल या आदम अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, कि ए आदम तुम उनको बताओ इनके नाम। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, जब उन्होंने उनको वो नाम बता दिए, उनकी खबर दे दी, काल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों का गैब जानता हूँ। व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो इन सब को मैं जानता हूँ। अब ये किस चीज के यानी उलूम थे? बाज ने कहा कुछ नाम थे कुछ चीजों के, और उसके खवास और उसके फवायद थे। अल्लाह ने इल्हाम के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को वो चीज सिखा दी। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए और फरिश्ते बयान न कर सके, तो अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम की हिकमत वाज़ेह कर दी। कहा कि मेरा इल्म उसके पास होगा, दुनिया में जो जिंदगी गुजारेगा तो इस इल्म की रोशनी में गुजारेगा। और इससे यह भी पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत थी, तो उनमें से एक वजह यह भी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया था। तो इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, ये दर्जात अल्लाह ने रखे हैं लोगों में भी इल्म के हवाले से ही। जिसकी जो फजीलत है तो वह इल्म की बिना पर है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इल्म की बिना पर फरिश्तों के सामने वाज़ेह की कि इसके पास जो मैंने इल्म दिया है वो तुम्हारे पास नहीं है। और फिर आगे जो हुक्म आया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के लिए, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, शैतान के। अबा वस्तकबर, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया, फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। ये सजदा इबादत का सजदा नहीं था, क्योंकि सजदा इबादत तो अल्लाह के लिए खास है। ये ताजीमी सजदा था जो अल्लाह के हुक्म से हुआ था। अब किसी के लिए गैरुल्लाह को सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं किसी को कहता किसी को सजदा करे, तो बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सजदा करे। लेकिन अब चूंकि अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज ही नहीं है, तो अब किसी को भी सजदा नहीं हो सकता। तो ये वो मामलात थे जो अल्लाह ताला ने रखे थे। जैसे जो अल्लाह ताला ने बहुत सारे उमूर हैं उनका वक्ती हुक्म दिया था। अब जो हमारे लिए जो दीन है, जो शरीयत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उसमें सजदा सिर्फ अल्लाह को हो सकता है, किसी और के लिए सजदा करना जायज ही नहीं है। और इबलीस ने इनकार किया। इबलीस कुरान मजीद की सराहत के मुताबिक ये जन्नात में से था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एजाजन फरिश्तों में शामिल कर रखा था। तो इसलिए जो सजदों का सजदे का जो हुक्म आया, तो फरिश्तों के साथ साथ, चूंकि ये भी उनके साथ रह रहा था वहां, तो इसको भी था। लेकिन इसने हसद और तकब्बुर की वजह से इनकार किया। हसद और तकब्बुर ये बड़े तबाह कुन गुनाह हैं, और सबसे पहले इनका ही इर्तिकाब किया गया था। शैतान तबाह और बर्बाद हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने हसद किया और तकब्बुर किया। हसद क्या है? हसद ये है कि किसी के पास कोई नेमत है, इंसान उसको नापसंद जाने कि उस पर यह नेमत क्यों है, उससे छिन जाए। अब हसद करने वाले को यह कोई परवाह नहीं होती कि ये नेमत उसको मिल जाए, वो कहता है कि इससे छिन जाए। तो ये हसद है, और ये तबाह कुन है, और हर गुनाह और फितने की तबाही की ये जड़ है। इसी तरह तकब्बुर, तकब्बुर किसे कहते हैं? अपने आप को बड़ा समझना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में बतरुल हक व गमतुन नास के साथ इसकी वजाहत की गई कि हक को झुटला देना, हक वाजे हो जाए, ये कुरान है, ये हदीस है, लेकिन इंसान कहे कि मैं इसको नहीं मानता, मैं अपने बाप दादा के दीन को मानता हूँ, अपने इमाम की बात को नहीं छोड़ूंगा, ये तकब्बुर है। और ये अगर पैदा हो गया तो इंसान तबाह और बर्बाद है। और दूसरा गमतुन्नास, लोगों को हकीर समझना, यह है तकब्बुर। अल्लाह ताला इन दोनों बुराइयों से हमें महफूज रखे। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने कहा कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिनहा रगदन हैस शितुमा, और जन्नत से तुम खाओ जहां से तुम चाहो, बा फरागत। वला तकरबा हाजिहि शजरत, इस दरख्त के करीब न जाओ, फतकूना मिन ज़ालिमीन,
तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो ये तीसरी फजीलत है आदम अलैहिस्सलाम की, कि अल्लाह ताला ने जन्नत उसका मस्कन बनाया, उसको जन्नत अता फरमाई। अब ये दरख्त जिससे उसको मना था, ये किस चीज का था? कुरान और हदीस में उसकी कोई सराहत नहीं है। बस ऐसे लोगों में मशहूर है कि वो गंदम का दरख्त था, जो बेअसल बात है, जिसकी कोई दलील नहीं है। तो हमें उसका नाम मालूम करने की जरूरत नहीं है, नहीं उसका कोई फायदा है। तो जब अल्लाह ने हमें नहीं बताया तो हमें भी उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। फ़अज़ल्लहुम शैतान अनहा, तो शैतान ने वर्गला दिया उन दोनों को उससे। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, और निकलवा दिया उससे जिसमें वो दोनों थे, यानी जन्नत से। वकुलना बितु बादुकुम लिबादिन अदुव, हमने कहा कि यहाँ से नीचे उतर जाओ, तुम्हारा बाज तुम्हारा दुश्मन होगा। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए जमीन में ये ठिकाना है और एक वक्त मुकर्रर तक फायदा उठाना है। तो यहाँ उनको जन्नत से निकाल दिया गया। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इसके दो मानी मुफस्सिरीन ने जिक्र किए। एक माना ये कि बनु आदम जो इंसान है एक दूसरे के दुश्मन होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। और दूसरा माना ये है कि उन्होंने कहा कि शैतान के साथ कहा गया कि तुम्हारी यानी बनु आदम की और शैतान की दुश्मनी रहेगी, जिसको कुरान ने और भी मुख्तलिफ मकामात पे वाज़ेह किया है। इन शैतान अलकुम अदुवन फत्तखिदुहु अदुवा, शैतान तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसको दुश्मन समझना। तो दुश्मनी की आखिरी हदों तक वो जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि इंसान उसकी दुश्मनी को भूल गया और उसकी बातों में आता है, वर्गलावे में आता है और गुनाह करता है। तो लेकिन वो जो अपनी दुश्मनी है उसको वो खूब निभा रहा है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उसने तौबा की अल्लाह पर। और फताब अलैहि का माना अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तव्वाब और रहीम है, खूब तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान है। अब ये कलिमात कौन से थे? जो मौजू और मन घड़त रिवायात हैं जिनको बहुत सारे लोग बयान करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अर्श पर कलिमा जो है लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वास्ते के साथ दुआ की। ये बातिल बात है और ये मौजू और मनगढ़ंत है, जबकि खुद ये चीज कुरान के भी खिलाफ है। कुरान में है कि अल्लाह ने उनको कुछ कलिमात सिखाए और वो कलिमात भी कुरान ने जिक्र किए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये जो कलिमात हैं इनको अल्लाह ने जिक्र किया है। तो ये बात बिल्कुल मौजू और मन घड़त है और इससे नाजायज वसीले के दरवाजे खोलना बिल्कुल बातिल बात है। कि अब उसके नतीजे में फिर जो यानी वास्ते जो देते हैं लोग जो हैं, खुसूसन कब्र परस्त जो हैं, जो अमल करते हैं कि फिला के तुफेल से वास्ते से हमारा ये अमल कबूल फरमा, तो इसकी कोई असल नहीं है। और ये अंबिया के तरीके के भी खिलाफ है, क्योंकि अंबिया ने जब भी मांगा है डायरेक्ट अल्लाह से मांगा है, बगैर किसी वसीले के मांगा है। और कुरान हमें भी यही कहता है, वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हें कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट बंदा अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला उसको देगा। बाकी वसीले का इंशाल्लाह मौजू आगे आएगा तो वहां मजीद इस बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से ये अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। उसके बाद कुल नहबितु मिनहा जमिया, तो हमने कहा यहाँ से सब चले जाओ। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस जरूर आएगी तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत, मेरी तरफ से हिदायत आएगी। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जिसने उसकी ताबेदारी की तो उस पर कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। वल्लज़ीन कफरू वकद्दबू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, तो ये जहन्नमी है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है, हिदायत आ चुकी, ये कुरान मजीद अल्लाह की हिदायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ये अल्लाह की हिदायत है। तो इसको छोड़ के दाएं बाएं मत जाओ, दूसरी चीजों की तरफ मत पढ़ो। और वो शैतानी रास्ते हैं, अल्लाह का रास्ता एक है, अल्लाह की हिदायत एक है, वो कुरान है, वो हदीस है। उसमें अपना अकीदा भी आप लो और उससे आप जो है अपना अमल भी दुरुस्त करो। यही चीजें नजात का सबब हैं। इसके अलावा जो रास्ते हैं, जो यानी कील वकाल है, लई तला, और इसी तरीके से क्यास और अपनी जो बातें हैं, ये सब जो हैं ये हक से इंसान को दूर कर देती हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर इनाम की। वऊफू बिअहदी ऊफ बिअहदिकुम, तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। फइयाय फरहबून वइयाय फरहबून, और खास मुझी से डरो। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इसराइल को खिताब फरमाया। इसराइल ये अब्दुल्लाह के माना में, ये याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था, याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था इसराइल, जिसका माना है अल्लाह का बंदा। और यहूदियों को बनु इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें यहूद के 12 कबीले बने, और कसरत से अंबिया और रसूल आए। और यहूदियों को अरब में जो गुज़िश्ता तारीख, इल्म, मजहब से वाबस्तगी की वजह से एक खास मकाम अहले अरब के यहाँ हासिल था, इसलिए उनको ये इनामात याद दिलाए जा रहे हैं कि तुम मेरा अहद पूरा करो। वो अहद कौन सा था? वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी आएंगे उन पर ईमान लाएंगे, और मैं अपना हद पूरा करूंगा तो तुम्हारे बोझ तुमसे उतार दूंगा, तुम्हारी गलतियों कोताही को तुमसे माफ यानी माफ कर दूंगा, जो अजाब तुम पर मुसल्लत है उसको खत्म कर दूंगा, दोबारा तुम्हें उरूज दूंगा, मुझसे डरो। तो ये था यानी अहद जिसकी उनको पासदारी करनी थी। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, और न तुम मिलाओ हक को बातिल के साथ, और तुम हक को न छुपाओ इस हाल में कि तुम जानते हो। यानी हक और बातिल को छुपाना ये हमेशा से अहले बातिल का तरीका रहा है। कुछ बातें उनकी सही होती हैं और कुछ बातें बातिल होती हैं। नतीजा क्या निकलता है? एक आम आदमी जिसको इल्म नहीं होता, उनकी सही बातों को जब वो सुनता है तो वो कहता है कि उनकी दूसरी बातें भी सही होंगी, और यूं जो बातिल चीजें हैं, मुनहरिफ अफकार हैं, उनको वो कबूल करता है। तो हक और बातिल को खल्त मल्त न करो, ये उनको नसीहत की जा रही है। और ये सबको नसीहत है, देखा जाए तो आज भी यही चीज है कि जो हक है उसको बयान किया जाए, और उसके साथ बातिल की आमेजिश न हो, ताकि हक खरा वाजे हो, और लोग जब उसको सुने तो वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएं, और जो बातिल है वो बिल्कुल अलग हो। यही कुरान करीम का तरीका है। वाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, तो नमाज कायम करो, जक़ात अदा करो, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, इससे एक ये भी है कि जो मर्द हैं उनके लिए ये है कि जमात के साथ नमाज अदा करें। जैसे अकीमुस सलात पीछे हम बयान कर चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ना, और वक्त पर नमाज पढ़ना। और ये एक और कैद भी आ गई मर्दों के लिए कि वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। अतामुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, व तंसौन अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते? अब यहाँ जो हुक्म है कि थोड़ी कीमत पर फरोख्त न करो, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कीमत पर फरोख्त करो, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह की हिदायत के मुकाबले में, अल्लाह के कलाम के मुकाबले में पूरी दुनिया भी मिल जाए तो फिर भी वो यानी मामूली है, वो हैच है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और पहले काफिर न बनो, इसका मतलब ये है कि एक तो तुम्हारे पास इल्म है, यहूदियों से कहा जा रहा है ना, एक तो तुम्हें इल्म है, दूसरों को वो इल्म नहीं है, तो लिहाजा तुम पहले इनकार करने वाले न बनो कि लोग तुम्हारे इनकार की वजह से वो भी इनकार करें, तो उनका वबाल भी तुम पर होगा। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम मदद तलब करो अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक ये भारी है मगर डरने वालों पर। यानी वैसे तो नमाज पढ़ना ये भारी है इस तौर पर के बस कुछ नमाजें ऐसी हैं, फजर की नमाज है वो नींद से उठ के पढ़नी पड़ती है, कुछ कारोबार के वक्त की नमाजें होती हैं, तो ये यहाँ और सब्र करना, इसके जरिए अल्लाह की मदद हासिल होती है। तो अगर हम मदद चाहते हैं तो एक तो सब्र करें, और दूसरा अल्लाह ताला से नमाज के जरिए मदद मांगें। ये फरमाया कि मुश्किल है, लेकिन जो डरने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे कि जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। आप बिलाल से कहते थे कि बिलाल अजान दो और हमें राहत पहुंचाओ। तो ये खुशू करने वालों पर बहुत आसान है।
अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं। इससे ये पता चला कि आखिरत का जो अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेशी का जो एहसास है, ये दुनिया में इंसान से नेक अमल कराता है। और कोई नेकी का काम मुश्किल नहीं होता। अब ये नमाज और सब्र ये मुश्किल है, लेकिन फरमाया कि खुश डरने वालों पर नहीं है। ये कौन लोग हैं? जो अल्लाह से मुलाकात की यकीन रखते हैं, और ये कि उन्होंने अल्लाह के पास जाना है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तुम याद करो मेरी वो नेमतें जो मैंने तुम पर की। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। यहाँ बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ने उन पर की। और जैसे मन और सलवा अल्लाह ने उतारा, बाथरूम का साया किया, कुछ ऐसी भी हैं जिनको आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र फरमाएंगे। तो नेमतों का उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर कितनी नेमतें की, और तुम किस कदर नाशुक्रे हो, किस कदर तुम अल्लाह के दीन के बागी हो। उन नेमतों को याद करो जो तुम पर अल्लाह ने की हैं। वानी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी। बनी इसराइल की यह फजीलत उनके वक्त के साथ, जमाने के साथ है। जबकि अब कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत मोहम्मदिया जो उम्मत है ये सबसे अफजल तरीन है। लेकिन साथ में हमें भी एक नसीहत है कि देखो, यहूद और नसारा भी अपने ज़माने में अफजल लोग थे, और उनको अल्लाह ने फजीलत दी थी। लेकिन जब वो खैर के बजाय शर बन गए, तो फिर अल्लाह ने उनसे ये टाइटल छीन लिया और इस उम्मत को दिया। इस उम्मत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, यहूद और नसारा के तरीकों पर चल रहे हैं। तो सिर्फ जो है निस्बत काफ़ी नहीं है, निस्बत तो बनी इसराइल को भी बहुत है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। लेकिन जब उन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, अंबिया की दावत को छोड़ दिया, तो फिर उस हसब नसब ने उनको कोई फायदा नहीं दिया। तो हमारे लिए भी यही चीज़ है। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं बेचारे मुसलमान जो सादा हैं, वो सिर्फ जो है समझते हैं कि फलां पीर है, फलां सैयद है, उसके साथ मैंने बेअत की है, वो मुझे छुड़ा लेगा। ममबत्ता भी अमल लम युसरे भी नसब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका जो अमल है उसको पीछे छोड़ गया, तो उसका हसब और नसब उसको आगे नहीं ले जा सकेगा। वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सन अन नफ्सिन शैया, और तुम डर जाओ उस दिन से कि नहीं नफा दे सकेगा कोई नफ्स किसी को कुछ भी। वला युकबल मिनहा शफा, और नहीं कोई शफात कबूल की जाएगी। वला युखद मिनहा अज्रुन वला हुम युनसरून, और ना उनसे कोई फिदिया लिया जाएगा, और न ही वो मदद किए जाएंगे। ये क्यामत का दिन है। अल्लाह उससे डरा रहा है कि आज अमल कर लो, ये अमल तुम्हारे काम आएगा। झूठी आरजू में मत रहो कि फलां की शफात हमें मिल जाएगी, जबकि अमल से हम कोरे हैं। और जो कोई भी चीज वहां नहीं होगी, इंसान का अमल ही उसके काम आएगा। जो नेक है तो उसकी नेकी उसको फायदा देगी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। अब यहाँ से उन इनामात का जिक्र भी है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर किए, कि जब हमने तुम्हें निजात दी आले फिरौन से, फिरौनियों से, जो तुम्हें जो अजाब हैं चखाते थे। सूअल अजाब, जिसको कुरान ने कहा बुरे अजाब, बदतरीन अजाब होते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को जबह कर देते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, फरमाया कि इसमें तुम लोगों के लिए बहुत अजीम जो है वो आजमाइश थी। तो उस वक़्त को याद करो, अल्लाह ने किस तरह तुम्हारे दुश्मन को नेस्त और नाबूद किया, तुम्हें निजात दी। वैज फरकना बिकुमुल बहर, और जब हमने फाड़ दिया, चीर दिया तुम्हारे लिए समंदर, दरिया, हमने उसको चीर दिया। फअनजयनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी। व अगरकना आल फिरौन, और हमने आले फिरौन, फिरौनियों को गरक कर दिया। व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे उनको डूबता हुआ। तो आले फिरौन से मुराद सिर्फ जो फिरौन के घर वाले नहीं है, बल्कि फिरौन के तमाम पैरोकार, जैसे जो अल्लाह ताला ने उस आगे भी इस बारे में जिक्र किया। तो आल कुरान की इस्लाह में मुत्तबीन और पैरोकारों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी आगे मजीद सूरतुल अहज़ाब में भी तफसीर आएगी इंशाअल्लाह। वइज़ वाअदना, और जब हमने वादा किया मूसा से, अरबईन लैलतन, 40 रातों का। सुम्म इत्तखज़्तुमुल इज्ल, फिर तुमने बना लिया बछड़े को, यानी माबूद, मिन बादी, उसके बाद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो गए। ये वाकया उस वक़्त हुआ जब फिरौनियों से अल्लाह ने उनको निजात दी, और बनी इसराइल जो है एक जजीरा था सीना का, वहां पहुंचे।
اللہ ताला ने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुला लिया। तो उसके बाद फिर बनु इसराइल सामरी के पीछे वो चले गए और उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। लेकिन इंसान कितना जाहिर परस्त है। अल्लाह के नबी दो दो मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, हारून अलैहिस्सलाम भी हैं। इतनी नेमतें, बदतरीन दुश्मन को अल्लाह ने उनके सामने गर्क किया, और किस कदर और नेमतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, बछड़े को माबूद समझ लिया। तो ये मुसलमान का भी आजकल यही मामला है कि हर जगह ये सामरी के बिछड़े हैं जिनको वो पूजते हैं। कहीं आस्थाने हैं, कहीं मज़ार हैं, और वहाँ सजदे भी हो रहे हैं, नजर न्याज दिए जा रहे हैं, जानवर ज़बह हो रहे हैं, और जबीन न्याज को टेका जा रहा है। हालांकि किस कदर ये दीन वाज़ेह है, तौहीद किस कदर वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तौहीद को वाज़ेह किया। उसके लिए आपने पत्थर यानी खाए, लहू लुहा हुए, लेकिन उसका पैगाम आपने अपनी उम्मत को पहुंचाया। सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फरमाया कि फिर उसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो नेमतों का शुक्र अदा करना ये इंतहाई ज़रूरी है। आज बेशुमार नेमतें हैं हम पर, हम देखें कि हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र के बड़े फ़वाइद हैं, अपने महल पर आएंगे तो नेमतों में इजाफा होता है, और नेमतें हमारे पास ठहर जाती हैं, और नाशुक्री नेमतों को खा जाती है, और जो और नेमतें हैं उनका रास्ता रोक देती है। लेकिन जो पहले से नेमतें मौजूद होती हैं तो वो भी चली जाती हैं। वही आतईना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो उस वक़्त को जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और फुरकान दिया, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो किताब से मुराद तो तौरात है, और फुरकान से मुराद बाज ने कहा कि ये तौरात ही, तो फिर ये अत्फ़े बयान होगा, यानी किताब भी फुरकान है। तो इसका मतलब कि किताब भी हक और बातिल के दरमियान फर्क करती, अल्लाह की किताब है, कुरान भी फुरकान है, तो तौरात भी फुरकान है। और बाज ने कहा फुरकान से मुराद वो मौजज़ात हैं जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, और याद करो उस वक़्त को जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, फतूबू इला बारिकुम, तो तुम तौबा करो अपने बारी, अपने पैदा करने वाले की तरफ, अपने आप को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारी, तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। फताब अलैकुम, उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह ने ये उनको सजा दी। ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि या तो उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया और दोनों ही आपस में लड़े, तो उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, या जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की उनको हुक्म हुआ कि उन लोगों को तुम कत्ल करो जिन्होंने बछड़े की पूजा की। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनकी ये तौबा थी। वैज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज नहीं ईमान लाएंगे तुझ पर हत्ता कि हम अल्लाह को देखें सामने, जहरा। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा, तो तुम्हें इस गुस्ताखी की वजह से बिजली ने पकड़ लिया, व अंतुम तंजुरून, और इस हाल में कि तुम देख रहे थे। तो ये जब तौरात लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसके साथ उसकी कौम के 70 आदमी वो भी थे, तो उन्होंने फिर ये मुतालबा किया कि हम अल्लाह को आंखों के सामने देखना चाहते हैं, तब हम आप पर ईमान लाएंगे। तो फिर अल्लाह का गजब उन पर उतरा, उन पर बिजली गिरी और वो मर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए, उनकी जिंदगी की दुआ की, जिस पर अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया। और यानी तुम देख रहे थे वो बिजली गिर रही थी, इसका एक मतलब तो ये है कि आखिर वाले उसे देख रहे थे। एक यानी पहलुओं के ऊपर जब बिजली गिरी और वो जल रहे थे, तो आखिर वाले जिनके ऊपर बाद में बिजली गिरी तो वो उनको देख रहे थे, हत्ता कि सारे वो मर गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुम्हें उठाया तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और हमने बादल का साया किया तुम पर। वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वसलवा, और हमने मन और सलवा को तुम पर उतारा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम पाकीज़ा में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो ये
بعض मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मैदान ती में थे, जो अमालका की बस्ती में अल्लाह ने कहा था दाखिल हो जाओ, बस्ती तुम्हारी है। जब उन्होंने इनकार किया, फिर अल्लाह ने 40 साल तक उनको तीह के मैदान में रखा। और वहां जो है खाने का जब मसला पेश आया, तो फिर जो है ये मन और सलवा उनके ऊपर उतरा। मन मीठी चीज होती थी और वो खुश्क होकर गोंद की तरह हो जाती थी। बाज के नजदीक शहद या मीठा पानी भी मुराद दिया गया है। और सही बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है कि खुम्बी मन की उस किस्म से है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। तो ये चीजें, यानी जिस तरह खुम्बी बगैर किसी के उगाए वो खुद उग जाती है, तो ये भी उनकी किसी मेहनत के बगैर ये रिज्क उन तक आता था। और सलवा बटेर या चिड़िया की तरह कोई परिंदा था जिसे जबह करके वो खा लेते थे। वैद कुल नदखुलु हाज़िहिल करियत, और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, इस बस्ती से मुराद बैतुल मुकद्दस मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है। तो कुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदा, तुम खाओ जहां से तुम चाहो, बा फरागत। वदखुलुल बाब सुजदा, और तुम दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए। वकूलु हित्ततुन, और तुम कहो हित्ता। हित्ता का माना है कि उहतुत अन्ना जुनूबना, हमारे गुनाह हमसे माफ कर दे। नगफिर लकुम खतायाकुम, तो हम माफ कर देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह। वसनजीदुल मुहसिनीन, और जो नेकी करने वाले हैं हम उनको और ज्यादा देंगे। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि इस तरह कहते हुए तौबा करते हुए दाखिल हो जाओ। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया, फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, तो बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन गैर अल्लज़ी कील लहुम, अलावा उस कौल के जो उनको कहा गया। फ़अंज़लना अला अल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सिकून, तो हमने जालिमों पर आसमान से अजाब उतारा। और उसका सबब क्या था, उसके फिस्क और नाफरमानी की वजह से हमने उन पर अजाब नाजिल किया। सही बुखारी की हदीस है कि उनको हुक्म दिया गया था कि सजदा करते हुए दाखिल हों, लेकिन वो सुरीनों के बल घसीटते हुए दाखिल हुए और हित्ततुन के बजाय कहने लगे हब्बतुन फी शारतिन, गंदुम बाली में। तो ये उनका इस्तेहज़ा था, मजाक था, और जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनको फिर अजाब से दो चार किया। वजिस्तस्का मूसा लिकौमिही, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, फकुल नजर बिअसाकल हजर, तो हमने कहा कि तुम मारो अपनी लाठी को पत्थर पर, जिससे फन फजरत मिनहु सनता अशरत आइना, उससे 12 चश्मे फूट निकले। कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो हर ग्रोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। तो कुलू वशरबू में रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क से खाओ और पियो। वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसाद करने वाले न बनो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर ये एक और एहसान किया कि वहाँ पानी की तलब हुई, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी मार। तो पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। 12 कबीले थे, हर कबीले का एक चश्मा था। और फिर उनको नसीहत हो रही है कि अपनी फसाद की रविश तर्क करो, मोहसिन बन जाओ, एहसान करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी नेमतें हैं, बार बार वो तुम्हारे ऊपर हैं जिनका तुम मुशाहिदा करते हो, लेकिन फिर भी तुम कुफरान नेमत की राह को इख्तियार करते हो। वैज़ कुल तुम या मूसा, जब तुमने कहा ये मूसा, लन नस्बिर अला तआम वाहिदिन, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे एक किस्म के खाने पर। फदउ लना रब्बक, तो तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से। युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, कि वो हमारे लिए वो निकाले उससे जो जमीन उगाती है। मिन बकलिहा, उसका साग, वो किस्साइहा, उसकी ककड़ी, व फूमिहा व अदसिहा, उसका गेहूं और उसकी दाल। अदस का माना मसूर की दाल भी है। वो बसलिहा, और उसके प्याज। अल्लाह ने फरमाया काल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, के बेहतर चीज के बदले अदना चीज की क्यों तुम तलब करते हो। इहबितू मिस्रन, किसी शहर में चले जाओ। फ़इन लकुम मा सअलतुम, बेशक तुम्हारे लिए वो है जो तुमने मांगा। वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कन, और मुसल्लत कर दी गई उन पर जिल्लत और मिस्कीनी। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, अल्लाह के गजब के साथ, गुस्से के साथ, नाराजगी के साथ वो लौटे। ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कहा ऐसा क्यों हुआ, इस सबब से कि अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से निकलने वाले थे। तो जो अंबिया हैं, जो दीन की तरफ बुलाने वाले हैं,
ان کو قتل کرنا یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے جو ہر دور میں اہل باطل کا شیوا رہتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا غصہ ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے رسوائی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، صابی کا لفظی معنی ہوتا ہے بے دین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل الصالحہ، نیک عمل کیے، ولہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، ایک نظریہ ہے، مختصر میں اس کا رد کرنا چاہتا ہوں۔ وحدت ادیان، بعض نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ اور عمل کرو اور اللہ کو مانو تو پھر تمہاری نجات ہو جائے گی، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو جس دین کو مانتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ بلکہ وہ اس آیت میں یہ جو تفسیر کرتے ہیں یہ گمراہ کن تفسیر ہے، اس کی درست تفسیر کیا ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہودیوں کی بدعملیوں اور سرکشوں کا ذکر کیا، ان پر اللہ عذاب ہوا اس کا ذکر فرمایا، تو ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہودیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح تھے، کتاب الہی کی پیروی کرنے والے تھے، اپنے پیغمبر کی ہدایت پر وہ چلے، تو کیا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ صرف یہودی نہیں بلکہ نصارہ، صابی، جو اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، آخرت پر ایمان تھا، عمل صالح کرتے رہے، تو وہ سب جو ہے ان کے لیے آخرت میں نجات ہوگی۔ اور لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آ جانے کے بعد جو کسی اور دین پر ہے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ چیز موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق جو سنتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور پھر وہ مر جاتا ہے اس کے بغیر، تو مرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور مزید پھر سبب نزول سے بھی اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت کرتے تھے، نمازی تھے، لیکن اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو اس موقع پر یہ آیت اتری، ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ تو یہ جو مفہوم ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں قرآنی آیات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہیں احادیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا، تو ظاہر ہے کہ احادیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی بعض علماء کی یہ کتابیں، شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے نا کہ انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے، تو بات یہی ہے کہ حدیث کا انکار یہ در حقیقت قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو تم پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی نوازشات، یعنی ان کی جو نافرمانیاں ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم اور آسانی والا معاملہ فرما رہا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں جو زیادتی کی، حد سے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے انہیں اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا سبب بنا دیا۔ تو یہاں ہفتے والے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنا منع تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تو انہوں نے گڑھے کھود لیے، اور مچھلیاں ہفتے والے دن پھنس جاتی تو پھر ان کو اتوار کے دن جا کر نکالتے تھے، تو یہ ان کا ہیلا تھا۔ تو قرآن و سنت کے واضح احکامات کے مقابلے میں جو ہیلے ہیں
जो मुख्तलिफ लोग करते हैं ताकि उससे बच जाएं, ज़कात के बाब में और दीगर अपने मन माने उमूर उनको लेने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराशते हैं। तो याद रखना चाहिए कि यह हीला करना ये यहूदियों की सिफत थी, और अल्लाह ने उनको उसका नतीजा दुनिया में ही दिया, बल्कि उनको इबरत का निशान बना दिया। और जो दुनिया में ही उनके लिए यह अजाब था कि जलील बंदर बन जाओ, तो जलील बंदर बन गए ऐसे लोग। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, तो इसके बारे में बयान हो चुका कि अल्लाह ने उनको इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत का सबब है। हर दौर में परहेजगार इस वाक़े को याद करेंगे और उनके लिए ये नसीहत का सबब होगा। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और जब अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम से ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? काल औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। अब यहाँ देखें कि सीधा सा हुक्म था कि गाय ज़बह करो। अब उसका सबब यह है कि बनी इसराइल में एक लावलद मालदार आदमी था, उसका वारिस एक भतीजा था। एक रात उसके भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके उसकी लाश किसी आदमी के दरवाजे पर डाल दी। सुबह कातिल की तलाश में फिर एक दूसरे पर इल्जाम देने लगे, तो आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम तक ये मामला पहुंचा। तो अल्लाह ने उनको गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। कहा कि गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिससे वो जिंदा हो गया, और कातिल के बारे में बताया उसने, और फिर मर गया। तो अब उन्होंने मजीद सवालात किए, हालांकि आसान हुक्म था, कोई भी गाय लेते उसको ज़बह करते, अमल हो जाता। काल उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कहा आप ए मूसा अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे लिए उनकी माहियत बयान करे कि वो गाय कैसी हो। काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र, फरमाया कि सुनो वो गाय न तो बिल्कुल बूढ़ी हो और न बच्ची हो, अवानुम बैन ज़ालिका, ये दरमियानी हो। फफ़अलू मा तुमरून, तुम कर लो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। अब दोबारा भी कहा गया ताकि मजीद सवाल न करें, लेकिन नहीं। काल उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, फिर कहने लगे आप अपने रब से दुआ करें कि इसका रंग क्या है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो गाय जो है वो जर्द रंग की हो, चमकीला, और देखने वालों को अच्छी लगे, और तसुर्रुन नाज़रीन, ये उसकी अलामत थी। फिर सवाल हुआ, काल उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, कि कहने लगे कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी मजीद माहियत बताए, इसलिए कि ये गाय तो उसका पता ही नहीं चलता, तो अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत पा जाएंगे। फिर हुक्म हुआ कि वो गाय ऐसी हो कि काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली, खेतों को पानी पिलाने वाली ना हो, तंदुरुस्त हो, बेदाग हो। तो उन्होंने कहा अब हक वाजे हो गया, और को उन्होंने, यानी वो ऐसा करने के करीब नहीं थे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इस हुक्म को माना और वो गाय जबह कर दी। तो ये देखें, यानी ला यानी फजूल किस्म के सवाल। अल्लाह का जब हुक्म आ जाए तो इंसान उस पर अमल कर ले, उसमें बहुत ज्यादा तान्नुत करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, फिर मामला मुश्किल होता जाता है, और ये दीन आसान है। इन दीन युस्रन, इंसान खुद अपने ऊपर पाबंदियां लगा के उसको मुश्किल बना देता है। और जब तुमने कत्ल किया एक जान को, झगड़ा किया उसमें, और फरमाया कि अल्लाह ताला निकालने वाला है मा कुन तुम तक तुम, वो चीज जो तुम छुपाने वाले थे। फकुल नजरिबूह बिबादिहा, हमने कहा इसका बाज हिस्सा उसको मारो, उस मकतूल को। कदालिक युहिल्लाहुल मौता, इसमें एक और चीज भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को कैसे उठाएगा, ये मुशाहिदा उनके सामने आ गया। एक शख्स मर चुका था, तो अल्लाह ने एक मिसाल उसको बनाया। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, अल्लाह अपनी आयात तुम्हें दिखाता है ताकि तुम अकल रखो। फिर आगे कहा, उसके बाद इतना बड़ा वाकया हुआ, बोला तो ये चाहिए था कि तुम्हारे दिल नरम पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, बस वो पत्थर की तरह हो गए, या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। फरमाया कि पत्थरों में से बाज तो ऐसे हैं कि जो फट पड़ते हैं, उससे नहरें जारी होती हैं, और उसमें से पानी जो है वो निकलता है उनके फटने से। और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उससे गाफिल नहीं है। तो यहाँ पत्थरों की सख्ती के बावजूद उनसे फायदे हासिल होते हैं, लेकिन इंसान का दिल बसा औकात इतना सख्त हो जाता है कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होता है, उसमें कोई असर नहीं होता। कितने मुआजिजात सामने हैं, और हक सामने है, निशानियां सामने हैं,
लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। आगे फरमाया अफततमाऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम तमा रखते हो इस बात की कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए। वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह, हालांकि एक ग्रोह इनमें से ऐसा था जो कलाम अल्लाह को सुनता था, फिर उसको फेर देता था। मिन बाद मा अक़लूह, उसको समझने के बाद, वहम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए। जब उनका बाज बाज की तरफ अकेला होता है तो कहते हैं कि क्या तुम उनको वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई हैं? क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत होगी। ये मुनाफिकीन का एक ग्रोह यहूदियों में भी था। वो कहता था कि तुम उनको अपने दीन की बातें बताते हो, फिर अल्लाह के पास जाके ये तुम्हारी शिकायत करेंगे, इस तरह तो तुम पकड़े जाओगे, यानी ये बातें उनको मत बताओ। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और आगे फरमाया कि मिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं, सिर्फ गुमान करते हैं, और उनके पास कोई इल्म नहीं होता, लेकिन बातें बड़ी करते हैं बगैर इल्म के। आरजुएं उनकी बहुत बड़ी हैं लेकिन इल्म उनके पास कुछ नहीं। तो फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उनके लिए जो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से किताब को तराशते हैं, घड़ते हैं, तहरीफ करते हैं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो उससे थोड़ी सी कीमत हासिल करें। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, उनके लिए हलाकत है जो उनके हाथों ने कमाया, और उनके लिए हलाकत है उससे जो वो यानी वो कमाते हैं। तो ये उनका कमाना दुनिया, किताबुल्लाह को बेच कर अल्लाह की आयत में तहरीफ करना, ये क्या है, ये उनके लिए हलाकत है। ये मत समझो कि ये दुनिया उनके पास आ रही, नहीं, बल्कि ये उनके हलाकत का सामान है जो उनके हाथों में आ रहा। वकाल लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्याम मादूदा, उन्होंने कहा हरगिज हमें नहीं छू सकेगी आग मगर कुछ गिने हुए दिन। तो फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह के यहाँ से कोई अहद लिया है कि अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कह रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। यानी चंद बातें ये ऐसी हैं कि जो तुम अपनी तरफ से कह रहे हो। अब मिसाल के तौर पर वो कहते थे कि हमें 7 दिन, बाज कहते थे कि हम जो है 7 दिन जहन्नम में रहेंगे, और कुछ कहते थे कि 40 दिन, जो हमने बछड़े की इबादत की, ये दिन हम जो है वहां जहन्नम में रहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ये तुम कैसे कह रहे हो, क्या अल्लाह ने तुम्हें कोई अहद दिया है, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे पैमान किया है, अब वो अल्लाह अपना अहद पूरा करेगा। भला मन कसब सय्यतन व हातत बिही खतियतुहु, क्यों नहीं, जिसने कमाया गुनाह और उसके गुनाहों ने उसको घेर दिया, फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, तो वो जहन्नमी है, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, तो ये लोग जन्नती हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने निजात का रास्ता बताया कि जन्नत किन के लिए है और कौन लोग होंगे जो जो नाकाम हैं अल्लाह के यहाँ। तो उनका जो है क्या है, गुनाह इंसान की तबाही का सबब है, जहन्नम में जाने का सबब है। ईमान और अमल सालिह ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान जन्नत में दाखिल होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल से एक अहद लिया है कि उस अहद में कुछ बातें हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, और दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे, कराबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, वकूल लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहोगे, और नमाज कायम करोगे और जक़ात दोगे, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से, और तुम एराज करने वाले हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अहद लिया बनी इसराइल से, जिससे उन्होंने एराज किया, जिसमें सबसे पहले अल्लाह की इबादत है, तौहीद सबसे मुकद्दम है, और उसके बाद माँ बाप के हुकूक भी हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करना है, और इसी तरह दीगर जो नेक उमूर है अहले ईमान, उनमें भी कोई कोताही नहीं करते। फरमाया फिर तुम वो लोग हो कि तुम कत्ल करते हो, तख्तुलून अनफुसकुम, अपने आप को, और तुम निकालते हो एक ग्रोह को जो तुम में से है उसके घरों से, और गुनाह और ज्यादती के कामों में उनके खिलाफ तुम दूसरों की तरफदारी करते हो। हाँ, जब वो कैदी बन के तुम्हारे पास आते हैं तो उनका फिदिया देकर तुम उनको निकालना चाहते हो, हालांकि तुम पर उनका निकालना ही हराम था, उसका तुमने कोई ख्याल नहीं रखा।
یعنی یہاں جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ، اور انصار کے اوس اور خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو ان کو جو ہے، اب یہودی ان کے حلیف تھے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ آپس میں جب لڑتے تھے تو یہودی بھی لڑتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا، تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے اب فدیہ دے کے پھر ان کو کیوں چھڑاتے؟ جب وہ قیدی بنتے تو پھر یہ یہودی ان کو آزاد بھی کراتے تھے، کہ تورات کا ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے ان کو آزادی دلائیں. حالانکہ فرمایا کہ تم جب لڑتے ہو تو لڑنے سے تو تمہیں منع تھا، وہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے ان کی اس بات کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا کہ کیا بدلہ ہے جو ایسا کرتا ہے تم میں سے، دنیا کی زندگی کی رسوائی اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید کر لیا آخرت کے بدلے، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ آج ہمارا یہ درس تھا، اور یقیناً وقت کی کافی قلت ہے. اور سورۃ البقرہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسائل کافی زیادہ ہیں اختصار کے باوجود بھی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو آگے جو صورتیں آئیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کو لے سکیں انشاءاللہ. جو ہمارا ہدف ہے 30 دن کا، اس میں ہم پورا جو ہوگا خلاصہ جو تفسیر ہے وہ ہم لے لیں گے انشاءاللہ. لیکن سورہ بقرہ میں چونکہ کافی مسائل کی تفسیر ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم جو ہے کچھ یعنی سلو چل رہے ہیں. تو آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ہم پہلے سن چکے ہیں، تو ان کا بار بار تکرار نہیں آئے گا. تو اس معنی میں پھر انشاءاللہ ہمارا ہدف اللہ کے حکم سے، اذن سے ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کا فہم ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کو ہمارے لیے نور بنا دے دنیا کے اندھیروں میں، آخرت کے اندھیروں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.